find a open set centered at x naught y naught. That means you need to find a delta. Okay, you need to find a delta which is greater than 0, which is a very, of course, small. And if you draw a disk around this x naught y naught with delta radius, okay, and in this disk, this is called the neighborhood, NBD, neighborhood. This whole neighborhood, if this whole neighborhood lies in D, then we call that x naught y naught is the interior point. That means each and every point of the neighborhood is points of D. Okay, D सेट का सारे पॉइंट्स, ये जो सॉरी नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स आएंगे हमारे, ये सारे D सेट के होंगे. So then it is called the interior point. Then it is called interior point. Interior point. That means if you can find any delta greater than 0 and a neighborhood centered at x naught y naught and with radius delta, and each and every point of that neighborhood are points from the set D, then we call x naught y naught is an interior point. Okay, and अगर कोई पॉइंट बाउंड्री में है, ठीक है, लेट्स से x1 y1, तो वहां पे अगर आप एक नेबरहुड लेते हो तो वहां पे क्या रहेगा? इफ यू कैन फाइंड आउट ए डेल्टा 1 लेट्स से, ठीक है, एंड टेक डेल्टा 1 रेडियस के एक नेबरहुड ले लो with center at x1 y1, then you can find out points of D and outside D, then we call that point as boundary point. Okay, then we call that point boundary point. तो देखो ओपन सेट का एक दूसरा एक डेफिनेशन है, ओपन सेट का एक दूसरा डेफिनेशन है आपका. there is another definition of open set is each and every point, each and every point is an interior point. ओके अगर आपका एक सेट है S और for any arbitrary point from S, if it's an interior point, then we call that set S as an open set. Okay, यहाँ पे थोड़ा सा हम एनालिसिस के कंसेप्ट यूज करेंगे. तो दिस इज इट गाइस. तो किसी को कोई डाउट फ्रॉम हियर? ओपन सेट, ओपन बॉल, क्लोज सेट, क्लोज बॉल, interior point, boundary point. Guys, are you listening? Yes, sir. Okay, so here जो हमने डोमेन में सेट चूज की थी, that's an open set. Dotted line, that means open, and it is greater than 0 ensures that x naught y naught is not in the set. So in the last class I have told you that ये मैं एक बार फिर से बताता हूँ आप लोगों को that एक तो आपका था, हमने देखा था if limit is path dependent, then that limit does not exist.
That means what is the meaning? That means for different choice of path, you will get different limit. Okay, and second is what? This is for disproof purpose. Okay, and proof purpose के लिए there is generalized definition of limit. ठीक है, that is that epsilon delta definition. तो जब हमारे पास f जब r से r में होता था, ठीक है, इन दैट केस जो तरीके थे, तो जब भी ये R2 में हो गया तो वहां पे अगर हमें कोई लिमिट देगा और इफ दे वांट अस टू शो दैट दिस लिमिट डजंट एग्जिस्ट, देन आपको क्या करना है? आपको इस मेथड का यूज करना है. दैट मींस choice of path, different limits, and straight away you can say that the limit doesn't exist. If they gave you some limit and then want you to show that this limit is the truth, then you go for the epsilon delta definition. Okay. So let's, what is this theorem says? If f of xy tends to L as xy tends to x naught y naught, then xy tends to x naught y naught along any smooth curve. Okay, that means epsilon delta definition अगर हमारा satisfy करेगा तो हम कह सकते हैं कोई भी स्मूथ कर्व के लिए ये जो लिमिट है that will remain same. Fails to exist as xy tends to x naught y naught along some smooth curves, or if f of xy has different limit as xy tends to x naught y naught along two different smooth curves, then the limit of xy does not exist as xy tends to x naught y naught. ठीक है. So let's come to definitions of continuity. So same concept as real valued function. Same concept as real valued function. That means the limit जो हमारा L हो रहा था, that will be the functional value. That will be the functional value. Okay, हमारा था that was L, limit xy tends to x naught y naught. And this L should be equal to f of x naught y naught. That means उस point पे जो functional value होगा, that should be same as this limit. Then we call that the function is continuous. And continuity in the whole domain, that means if x naught y naught अगर एक सिंगुलर पॉइंट है आपके डोमेन में, तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी का ये डेफिनेशन है. सारे पॉइंट्स के लिए अगर डोमेन के ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा, देन वी कॉल दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन द डोमेन D. ओके. तो बेसिकली इसको अगर आप ग्राफिकली यहाँ पे ले जाओ, ठीक है, तो व्हाट दे आर सेइंग, तो देखो कंटिन्यूटी में जो सरफेस होगा यहाँ पे, वी डील विथ सरफेस, और आर में हमने क्या था? कर्व्स. एक जनरल कंसेप्ट में बता देता हूँ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए. तो देखो आप लोगों ने आर फंक्शन ये कहाँ से कहाँ तक है? दिस इज फ्रॉम R2 to R,
that means graph will be in R3. This is from R to R. तो continuity differentiability, इन दोनों में यहाँ पे हमारा क्या कंसेप्ट था, that the pen should not be removed from the paper, right? If that we can do, then we can say that this function will be continuous. Okay. Now if I remove the pen or somewhere just the value is not there, okay, then we then we call that, let's say, like signum function and all. Okay, so these kind of function are not continuous because at this point left hand and the right hand limit are not equal. तो similarly यहाँ पे this whole thing will be dealing with in surface के terms में यहाँ पे deal होगा. यहाँ पे एक दो डायग्राम है, डायग्राम ड्रॉ करना मुश्किल है मेरे लिए, so see these diagrams like this. So vertical jump at the origin, so this part is missing, so this curve is not continuous, this function is not continuous. Similarly अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी के केस में जाओ, जैसे स्मूथ कर्व्स होते हैं, राइट, स्मूथ कर्व्स इज व्हाट, कोई शार्प कॉर्नर नहीं है. स्मूथ कर्व्स आर दोज doesn't have any sharp corners, right, like this, like parabola, ellipse, और कोई भी जहाँ पे हमारा शार्प कॉर्नर कुछ है नहीं. तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपका, अगर आप सरफेस के केस में जब डील करोगे, यहाँ पे भी आपका वही सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा कि इन दैट सरफेस देयर शुडंट बी एनी शार्प कॉर्नर. दैट मींस उस पॉइंट पे, यहाँ पे जैसे शार्प कॉर्नर का क्या सिग्निफिकेंस था, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द शार्प कॉर्नर, दैट ईच एंड एवरी पॉइंट में हमें एक यूनिक टेंजेंट मिलना चाहिए. शार्प कॉर्नर अगर आ जाएगा कहीं पे तो वहां पे हमें यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा. इस पॉइंट पे जैसे मोडेक्स के केस में हमें मल्टीपल टेंजेंट्स मिलेगा वहां पे, सो वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो टेंजेंट प्लेन होगा, यहाँ पे अगर आप डील करोगे स्मूथनेस ऑफ सरफेस को लेके, देन दैट टेंजेंट will convert to tangent plane. Okay. तो ये थोड़ा बहुत कंसेप्ट है आप लोगों के लिए. तो ये थ्योरम देखते हैं, व्हाट इज इट सेइंग. If gx is continuous at x naught and hy is continuous at y naught, then f of xy equal to gx into hy is continuous at x naught y naught. Okay. तो बेसिकली f of xy को अगर आप अलग अलग से x और y के टर्म्स में अगर आप लिख पाते हो, then you can apply this concept. Okay. If h of xy is continuous at x naught y naught and gu is continuous at u, which is h of x naught y naught, then the composition f of xy equal to g of h of xy is continuous at x naught y naught. ठीक है. तो composition function जैसा हमारा रियल में था, ठीक है, same thing has been applied here. So the third thing is saying that if f of xy is continuous at x naught y naught, and this is the parametric, find if xt and yt are continuous at t naught with x naught equal to x of t naught and y naught equal to y of t naught, then the composition f of xt yt is continuous at t naught. Okay. थोड़ा सा हम एग्जाम्पल करते हैं इसके रिगार्डिंग. यही एग्जाम्पल एक बार. तो these two functions are continuous everywhere. तो इसके लिए क्या किया, so they took this is another function, this function इसको उसने 3x square को gx ले लिया और hy को y to the power 5 ले लिया, continuous every real number. Therefore by part A of this theorem the function is continuous everywhere. ये दोनों ही हमारा मोनोमियल है.
monomials are continuous. And here यहाँ पे they used that part be the composition function, because this is they will take like ये जो है हमारा this part is u and this part is g. Okay, so let's do some other problems. Okay, ये एक बार करो, this is easy. Show that f is continuous everywhere. And evaluate the limit. तो ये हम कैसे करेंगे? सर ये एफ एक्स बाई जी एक्स की फॉर्म का है, तो सर जो नीचे वाला जी एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो नीचे वाली तो टर्म ये जो है दिस इज लाइक ए रैशनल फंक्शन, राइट? दिस इज सर इन टर्म्स ऑफ रैशनल फंक्शन. एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई. तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई में हम क्या कर सकते हैं? एफ ऑफ एक्स वाई को हम किस तरह से लिख सकते हैं? जी एक्स माइनस एच वाई के टर्म में लिख सकते हैं. तो वहां से हम दिखा सकते हैं कि जी एक्स हमारा क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, एच वाई आ रहा है हमारा y. तो 2x एंड y दे आर सेपरेटली कंटिन्यूअस एवरीवेयर, राइट? स्ट्रेट लाइन है दोनों अलग अलग से. अभी जो हमने थ्योरम देखा वो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में था, बट दैट वी कैन यूज इन हियर आल्सो. ठीक है, और नीचे वाला टर्म शुडंट बी इक्वल टू 0, राइट? तो कोई पॉइंट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 शुडंट बी इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे वाला टर्म हमारा 0 कभी क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा वी हैव टू स्क्वायर टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स. ओके, तो इसको अगर आप इस साइड ले जाओगे 4 को, सो दैट विल बी -4, सो दैट इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. तो सारे पॉइंट्स के लिए हमारा जो फंक्शन है दैट विल बी कंटिन्यूअस बिकॉज ऑफ दीज टू पावर्स. ओके, अदरवाइज कुछ एक एक्सप्रेशन आ जाता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह पे अगर हम कुछ और डाल देते, क्यूब डाल देते एक में और दूसरे में कुछ डाल देते, तो दैट कुड बी अनदर सिनेरियो. ठीक है, and this limit is easy, just put the values and we'll get. Okay. ये ना मुझे I have to figure out this thing.
to show that the function is continuous everywhere except 0, except at the origin or 0. तो ये कैसे दिखाएंगे हम? राइट मतलब 0 से आगे वाली लिमिट इवैल्यूएट करके, मतलब राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसा कुछ। क्या कह रहे, थोड़ा सा मतलब सर पूछ के 0 बता। हाँ हाँ बता। सर कह रहा हूँ कि जैसे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं करते थे, हाँ वो करके देख सकते हैं अगर वैल्यू अलग अलग आ गई तो, मतलब 0 पे कंटिन्यूस नहीं। यही तो इतना मतलब रामायण हो गया पूरा। मतलब तू अभी भी कह रहा है, पूछ रहा है सीता किसके पिता है? मतलब हद है। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से देख लेंगे भाई यहाँ पे? सर बेसिकली जो है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जब भी कॉन्टिन्यूस होगा, और 0 पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ तो शो कैसे करेंगे? अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? ये क्या था? हाँ, ये मैंने क्या समझाया था कल आप लोगों को? व्हाट इज इट? लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसके लिए हमें क्या चूज करना है? पाथ डिपेंडेंसी दिखाना है हमें? चूज करके समझ नहीं आया, तेरा आवाज कट गया, क्या कह रहा? डिफरेंट पाथ चूज करके शो करना है हाँ ना। एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट थोड़ी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखाना है कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 0, तो 0 पे हमें लिमिट सर आ गया निकालना है डिफरेंट पाथ चूज करके। सर, y इक्वल टू एक्स पाथ लेंगे तो लिमिट आ जाएगी, मतलब फिर वो आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2t स्क्वायर, तो वही 1 आ जाएगा, वो 1 और 0 तो फिर नहीं होगा। सर फिर वही पाथ ले लिया y इक्वल टू एक्स, तो फिर y इक्वल टू पैरामीटराइजेशन की। x के जगह पे कुछ y इक्वल टू x ले लो हाँ और सर, तो अभी दिखा दो जो लिमिट आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ a। तो एक a चेंज करने पे हमारा लिमिट भी चेंज होता है। सर अगर और a माय लेंगे, पॉइंट, यस सर, a चेंज करने में हमारा लिमिट भी चेंज होता है। अगर आप ये लिमिट वो करते हो, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 f ऑफ एक्स वाई, तो ये हमने पाथ चूज कर लिया, वो आई इक्वल टू एम एक्स या ए एक्स कुछ भी। ये क्या आ जाएगा हमारा? दिस विल बी 2m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये लिमिट हट जाएगा क्योंकि कोई x के टर्म्स ही नहीं है। ठीक है, तो m की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। सो दिस इज बेसिकली ए फंक्शन ऑफ m। ठीक है, if you change m the limit will also change, करेक्ट? m अगर 0 लेंगे तो ये हमारा 0 आएगा स्पेसिफिक उसके लिए। ठीक है, और 1 लेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, 2 लेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा। सो द लिमिट इज पाथ डिपेंडेंट एट 0। ओके, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 जो हो जाएगा, जो लिमिट आएगा हमारा, that will not always equal to the functional value। functional value हमारा क्या है यहाँ पे? what is the functional value? अरे ये क्या ऊपर 0 0, exactly, f of 0 0 is 0। ठीक है, बट ये अगर हम लिमिट यूज कर रहे हैं, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0,
तो 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के लिए ये इक्वल किसके साथ होना चाहिए था? जीरो, एफ ऑफ 0 के साथ इक्वल होना चाहिए था, irrespective of any path, right? But which is not the case. If I change the path here, that limit will also change. Understood? Yes, sir. ठीक है. एक दो प्रॉब्लम करते हैं. So that limit does not exist. क्या करेंगे इसके लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दिखाएंगे, राइट? No, sir. ये दिखाएंगे. ठीक है. बताओ क्या करना है इसमें? लाइन इक्वल वाई इक्वल टू एम एक्स के अक्रॉस में आ जाएगी. लिमिट निकल के आ रही है 1 प्लस एम की क्यूब अपॉन एम स्क्वायर. दिखा देंगे, एम का फंक्शन है. बस function of m depends upon m. So limit does not exist. ठीक है, सिंपल. ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज के बारे में हैबिचुएट होना पड़ेगा. So can you tell me at what points in R2 this function is continuous? सर एक्स और वाई दोनों 0 से बड़े हो. नहीं, एक मिनट सर. हाँ सर, एक्स और वाई दोनों वही होना चाहिए, पॉजिटिव. क्यों नेगेटिव होगा तो क्यों नहीं होगा? मतलब पॉजिटिव बोल रहा हूँ सर, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. हाँ, that means ये सेट होना चाहिए, यस सर. है ना?
बाकी सारे पॉइंट पे तो डिफाइंड ही है। यस सर। ठीक ठीक है, थोड़ा बहुत I'll send you some problem set. Recognition of continuous function. Composition of continuous function is continuous, sum, difference, product of continuous function continuous, quotient is continuous if the denominator is not zero. Okay, ये हम देख ही चुके हैं। तो there are some examples. Go through this once. So next cards come limits at discontinuity. Limits discontinuity में क्या कह रहा है? Again that same thing. डिसकंटिन्यूटी में जैसे शार्प कॉर्नर हो गया, ठीक है, जैसे इस तरह का कोई शेप है हमारा, ठीक है, दिस इज लाइक z इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। जैसे अगर आप तरह का देखेंगे, ठीक है, इस तरह का, सो दिस इज व्हाट y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज द ग्राफ, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, so this whole thing has been converted into surface. तो ये यहाँ पे एंड नहीं है, ये आपका चल रहा है ऊपर की तरफ, देयर इनफाइनेटली जो है सेम थिंग, इसको जस्ट हमने यहाँ पे इस पे कन्वर्ट कर दिया। तो z इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी लाइक दिस। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की केस पे अगर लिमिट, अगर हमारा 0 पे अगर हम लिमिट देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, और यहाँ पे तो कोई साइड नहीं होगा, तो अगर हम 0 पे लिमिट लेने की कोशिश करते हैं, तो दिस विल गो अपवर्ड, दैट इज प्लस इंफिनिटी। सिमिलरली डाउनवर्ड की तरफ जो आएगा दैट विल बी माइनस इंफिनिटी, एंड सिमिलरली एनी साइड्स, ठीक है, किसी भी साइड में अगर इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन आएगा तो सेम हमारा जो R से R वाला कंसेप्ट है वो चीज़ हमारा यहाँ पे भी R2 to R में भी यूज होगा, बट द डिफरेंस इज दैट वाज कर्व एंड दिस इज सरफेसेस। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? Sometimes it is easy to recognize when a limit does not exist. For example, this is evident from the curve and all, which implies that the values for the function approaches plus infinity as xy tends to 0, 0 along any smooth curve. Smooth curve means no sharp corner and all. स्मूथ कर्व तभी हो पाएगा यहाँ पे जब आपका सरफेस भी स्मूथ होगा, remember that. However, it is not evident whether the limit exists because it is an indeterminate of type 0 dot infinity. तो यहाँ पे L'Hopital's rule cannot be applied directly. Okay. तो यहाँ पे they find out a way how you can calculate this limit by using polar coordinate system. Okay, by using polar coordinate system, because polar means parameterize. यहाँ पे हमने क्या किया, x और y को हमने पैरामीटराइज किया बेसिकली, ठीक है, ये एक अनदर मेथड है ये करने का। तो लॉपिटस रूल यहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया बिकॉज इसको हमने r के टर्म्स में ले आ पाए, जो हमारा टोटल एक्सप्रेशन था दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू इन टर्म्स ऑफ r। ओके, तो हमने क्या किया, डोमेन में हमने पोलर का यूज किया। ओके, सो अगेन बाय विच यू कैन फाइंड आउट। सर डायरेक्टली क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? डायरेक्टली फिर वही पाथ वगैरह का पंगा आ जाएगा। डायरेक्टली अगर आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो फिर से वो पाथ वगैरह का पंगा आ जाएगा और आप ये श्योरिटी दे नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि एक तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? 0 डॉट इंफिनिटी फॉर्म में आ रहा है ये, ठीक है, और पाथ वगैरह का तो वैसे हम डायरेक्ट कोई मेथड हम निकाल नहीं पा रहे इसको, इस लिमिट को निकालने के लिए।
That's why they use this parameterized technique by using polar coordinate system. कुछ और तरीके से भी हम कर सकते हैं अगर आप पोलर ना करना चाहो तो. Next is continuity at boundary points. अच्छा, कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट्स करने से पहले अगर मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर आप का फंक्शन जो है लेट्स से I to R है, ठीक है, पर I is a subset of R. So let's say that I is this semi open or semi closed interval. तो इस बाउंड्री पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? वैसे नॉर्मली कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या है? लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट should be equal to the functional value. So what if this x naught is 0 or 1? Let's stick to 0 for now in this scenario. सर आप थोड़ा वही लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाले से ही बताऊं थोड़ा. वही तो बताना है सर इधर हम सिर्फ राइट हैंड लिमिट ही देखेंगे, लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. एग्जैक्टली. तो लेफ्ट साइड बाउंड्री पॉइंट में हम सिर्फ राइट हैंड देखेंगे और राइट साइड में हम सिर्फ लेफ्ट हैंड देखेंगे, ठीक है. और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 0 होगा तो विल कंसीडर ओनली प्लस, और अगर ये 1 होगा विल कंसीडर ओनली माइनस. तो अब बताओ इस चीज को अगर इसको मैं R2 कर दूं तब हम क्या करेंगे? Just think without seeing the book. ब्लॉक हो गया दिमाग. तो बाकी में से बता कोई दो सर. रेस्पॉन्स ही नहीं करता. बाकी सब सो रहे हैं क्या? देखो जरा. भरत, where is भरत? सर आप ही भरत बता are you दो. there? क्या कह रहे हैं हर्ष? बता दो सर. हाँ भाई, वो तो मैं बताऊंगा. मैं देखना चाह रहा हूँ कि why nobody is participating in the class. दिव्या. Yes, sir. Yes. So what do you think about it? सो तो नहीं गए थे रजाई के अंदर फिर से? No, sir. पक्की बात? तो चलो देखते हैं. और ये भरत कहाँ है? भरत आर यू देयर? भरत हरि कुमार. Yes. ओके. ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही है. Continuity and boundary points. So this graph is upper hemisphere and the natural domain for F is the closed unit disk. The natural domain is closed unit disk. Okay. Of course this can't be 0. तो हमारा जो है that is this whole thing will be this.
Okay, so the graph of f has no tears or holes, so it passes our intuitivity test for continuity. In this case, the continuity at point x naught y naught on the boundary reflects the fact that this limit tends to xy tends to x naught y naught is 0. तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा डोमेन था, तो यहाँ पे हम बाउंड्री पॉइंट को हम किस तरह से, यहाँ वहां पे तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से कर रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपननेस या क्लोजनेस से करेंगे, ओपननेस या फिर क्लोज्डनेस। ठीक है, तो दो चीज आपने सीखी थी, ठीक है। सो दिस इज ओपन, excluding the boundary points, this is closed. So basically weak inequality and strict inequality, okay, weak inequality and strict inequality से हम इस चीज को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। बेसिकली वहां पे क्या हो रहा था, ये आपका इंटरवल था, ओपन या क्लोज्ड या दोनों ओपन कुछ भी, तो वहां पे आप इस साइड से लिमिट ले रहे थे और इस साइड से लिमिट ले रहे थे। तो यहाँ पे आपका डोमेन जो हो गया वो इस तरह का कुछ हो गया या कोई डिफॉर्म शेप हो गया। तो ये जो डोमेन है, ठीक है, तो इसका कुछ एक इक्वेशन आएगा लाइक दिस डिस्क, ओके, लाइक दिस डिस्क। तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड से हम कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे अगर कोई लिमिट है तो वो लिमिट जो होगा हमारा इनसाइड से होगा, तो वो इनसाइड से हम किसी भी तरह से हमारा हो सकता है। वही सेम चीज आ जाता है फिर से पाथ वाला, अगर आपका डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट लिमिट आएगा, सो देन दैट विल नॉट एग्जिस्ट, बट अगर सारी चीजों के लिए आपका सेम लिमिट आएगा, सो दैट विल अगेन एग्जिस्ट, नथिंग एल्स, नथिंग फैंसी, ओके। तो मैं चाह रहा था ये पार्ट आप लोग थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि आई थिंक इस पार्ट में सभी को कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है चीज़ों को समझने में और इमेजिन करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये पूरी चीज़ को मैं फिर से थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज कराना चाहता हूँ कि अप टू दिस, क्योंकि इसके बाद हमारा जो है डिफरेंशिएबिलिटी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी विल बी कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा दैट इज, आप लोग जानते हो थोड़ा बहुत कि एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख के दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, एंड उसका डेफिनेशन भी हम करवाएंगे लिमिट वाला। बट उससे पहले ये फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन, लिमिट पॉइंट, कंटिन्यूटी, दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ के आना प्लीज, माय रिक्वेस्ट। कल आप लोग ये पूरा पार्ट जो हमने स्टार्ट किया था, तो प्लीज गो थ्रू दिस ईच एंड एवरी लाइन, कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम में अभी उतना मत जाओ, अभी आप लोग कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। प्रॉब्लम लिस्ट हम दे देंगे इसके लिए, तो प्लीज क्लियर दिस होल कंसेप्ट एंड विल मूव फर्दर टुमारो।